Yes. So right from now, we got to know in the last session that the function moves like this, the graph moves like this, and at pi by 2 it gets its highest point. At pi by 2 it gets its highest point. Again, at 270 degree or 3 pi by 2 it gets its lowest point. Again, if you come over here 2 pi, then it becomes 0. Then next, at 5 pi by 2 it will be reaching its highest point, and again at 3 pi it will get 0, and at 7 pi by 2 it will get its lowest point, and it will be moving on like this. It will moving on like this. Just as it moves on the right or on the positive x-axis, just like that it will be moving on in the negative x-axis. In the negative x-axis, just like the positive x-axis, it will move in the negative x-axis just like that. And this entire graph is called as the graph of y equals to sin x. Okay, everyone got from where the concept of the graph came? Everyone get this or not? Yes, sir. Yes, sir. 7 pi by 2, let me give it as 4 pi. This will be minus pi by 2. This will be minus pi. This will be minus 3 pi by 2. This will be minus 2 pi. This will be minus 5 pi by 2. This will be minus 3 pi. Sorry, I have done something wrong. Oh, sorry. This is minus pi by 2. Okay. Minus 3 pi by 2, minus 2 pi, minus 5 pi by 2. Yes, yes, correct, correct. So now, if you get the value of sine 90 degree, you got to know that this is equals to 1. And the value of sine 270 degree, the value will be minus 1. So if you get all the odd pi by 2 values, all odd pi by 2 values, their value will be plus 1. All odd pi by values, their value will be plus 1. Means sine pi by 2, sine 3 pi by 2, sine 5 pi by 2, sine 7 pi by 2. In all cases, you will get that the value will be minus 1. From the graph, how to get the value? If you want to know, now I have the graph. How to get the value of the trigonometry function? Then I can come over here. If I get I have to get the value of sine 3 pi by 2. Sorry, sine not 3 pi by 2. Sine 3 pi by 2 is minus 1. So I mean all the peaks and all the down come at the point of odd multiples of pi by 2. All the peaks and all the downs. If you want to get the value of the trigonometric functions from the graph, how to get it? Let's have a view. How to get this? So if you have to get the value of sine 5 pi by 2, just move to the point 5 pi by 2. We have come over here 5 pi by 2. We have to come to the point 5 pi by 2 and take a perpendicular from here to here. Take a perpendicular from here to here. Now the perpendicular at which it meets the graph, just corresponding to that, get the y coordinate. What is the y coordinate over here? And you got the y coordinate over here is 1. So the value is how much? 1. If you have to get, this is not the graph sheet. If you have done this on the graph sheet, then the y coordinate value will be clearly visible to you. Now this is not the graph sheet. That's why you cannot get the value of the y coordinate from there directly. If you have to get the value of sine, let me give you a value 2 pi by 3, sine 2 pi by 3 without calculation from the graph. If you want to know, then just locate where 2 pi by 3 will be there. Just tell me in which interval 2 pi by 3 will be there. 2 pi by 3 will lie in which interval? So this is pi plus pi by 3, yes or no? 2 pi by 3 is pi, sorry, this is pi minus pi by 3. So it means this will lie somewhere between pi by 2 to pi, yes or no? This will lie somewhere between here to here, pi by 2 to pi, 2 pi by 3. Do you get this or not? Yes, sir. So pi minus pi by 3, it means it will lie at a distance of pi by 3 from here. So it will lie at a distance of pi by 3 from the point pi. From the point pi, it will lie at a distance of pi by 3. So at this point, you have to get
make a perpendicular to the graph, and this point will correspond to somewhere this point. At this point you will get somewhere this point whose value will be how much? √3/2. Whose value will be how much? √3/2. How to get these values I will let you know. At first, from here we should have the concept of domain and range. Let's have the concept of domain and range from here at first. Then I will explain you how to get the trigonometric values of the trigonometric functions from right here. So just by seeing the graph of the function y equals to sin x, tell me what would be the domain of the function. What are the x values? What are the x values such that the function will exist? Just see this and tell me what are the x coordinate values. x कोऑर्डिनेट के कौन सा वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन जो है उसका ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है. आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर कहीं भी अपना हाथ लगा लो या फिर पेन का नीब लगा लो, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग में देखो कहीं भी आपका ग्राफ है कि नहीं. अगर ग्राफ है उसका मतलब यह है कि आपका इसी एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है. उसका मतलब उस एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आपका फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है. तो अभी बताओ मुझे डोमेन कितना होगा फंक्शन को देख के. बोलो डोमेन कितना आएगा? 90, 270. क्यों हम यहाँ लाइन खींचे हैं इसीलिए बोल रहे हो? क्यों यहाँ क्या नहीं है क्या डोमेन? यहाँ क्या एक्स के लिए ये नहीं है क्या? ये क्या नहीं है? ये क्या नहीं है? ये क्या नहीं है? यहाँ क्या नहीं है? 0 to n pi. 0 to n pi क्यों है? आपका कोई भी वैल्यू एक्स का कोई भी वैल्यू ले लो ना. यहाँ आपका एक्स का कोई भी वैल्यू के लिए कोई कहीं ना कहीं आपका डोमेन है. और यहाँ मैं ये आगे दिखाया हूँ, मतलब ये इंफिनिटी तक ऐसे ही चल रहा है. यानी कि आप माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक एक्स का कोई भी वैल्यू पे हाथ लगा लो, कोई भी वैल्यू पे हाथ लगा लो, आप एक्स का कहीं भी हाथ लगा लो, आपका ग्राफ का कुछ ही हिस्सा वहां प्रेजेंट रहेगा. कहीं भी यहाँ हाथ लगा लो ग्राफ है, यहाँ हाथ लगा लो इसके लिए ग्राफ है, यहाँ हाथ लगा लो इसके लिए ग्राफ है. कहीं भी आप हाथ लगा लो ना उसके लिए ग्राफ प्रेजेंट है. अगर एक्स कोऑर्डिनेट का किसी भी पॉइंट के ऊपर आप हाथ लगा देते हो, उसके लिए अगर y का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि ग्राफ का एग्जिस्टेंस वहां है, उसका मतलब वो x का वैल्यू आपका डोमेन में है. ठीक है, तो यहाँ आप माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी, यस, एक्स कोऑर्डिनेट पे आप कहीं भी अपना हाथ लगा लो उसके लिए आपका y का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है. इसका मतलब आपका डोमेन कितना आ गया? माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. अभी हम आ गए रेंज को. तो रेंज क्या है? मैं आपको बोला था रेंज क्या है, किसका वैल्यू है? एक्स का ना y का? Y. y का. यानी कि अभी यहाँ देखो आपका y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक y का वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है. y का -1 से लेकर +1 तक. देखो 1 to -1 हम नहीं बोलते हैं, आपको बताया था लास्ट क्लास में. हम पीछे से आगे तक आते हैं, आगे से पीछे तक कभी नहीं जाते. पीछे से यानी कि नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर की तरह हम आते हैं. तो -1 से लेकर 1 तक. और आपका ये जो वैल्यू है आपको पता है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू +1 है और साइन 270 डिग्री का वैल्यू -1 है. यानी कि ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूड होंगे. और इसको हम कैसे मिलेगा ना, हम देखेंगे कि ग्राफ का कोई भी पॉइंट से आप अगर y एक्सिस के तरह परपेंडिकुलर खींचते हो, अगर वो y एक्सिस आपका ग्राफ का परपेंडिकुलर में कहीं भी कट कर रहा है, वो जो y का कोऑर्डिनेट्स है -1 से 1 के अंदर सारे पॉइंट्स ग्राफ का कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यू है. इसका मतलब आपका रेंज कितना आ गया? -1 से लेकर +1 तक. ठीक है, साइन एक्स का डोमेन और रेंज सबको समझ में आया? डोमेन क्या है, रेंज क्या है? तो डोमेन हो गया कहीं भी अगर कोई भी ग्राफ आपको गिवन है, कहीं भी कोई भी ग्राफ अगर आपको गिवन है, उसका एक्स एक्सिस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट के लिए आपका ग्राफ का एग्जिस्टेंस होगा, उसको आप क्या बोलोगे? उसी एक्स कोऑर्डिनेट को आप बोलोगे डोमेन. और आपका डोमेन के वजह से
डोमेन के वजह से जो ग्राफ होगा उसके वहां से आपका जो y कोऑर्डिनेट जनरेट हो रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। यही हो गया आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, समझ आ गया सबको? Yes, आगे ना, sir. बस Yes, sir. बस अभी हम आगे जाएंगे और बाकी सारे जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज भी देखेंगे। अभी देखना है हमें कॉसेक्स का। कॉसेक्स का डोमेन है, मैं डायरेक्टली ग्राफ बना रहा हूँ, उसके बाद मैं प्लॉट करूंगा वैल्यू को, डायरेक्टली ग्राफ बना रहा हूँ पहले कॉसेक्स के लिए। मैं आपको इसको कैसे याद रखना है मैं आपको समझा दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लो। ये ग्राफ को कैसे याद रखना होगा, तो आपका जो साइन एक्स है ना वो ये यहाँ से शुरू हो रहा था, मगर कॉस एक्स ये 0 से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0। आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि आपको पता है साइन 90 का वैल्यू है 1, मगर साइन कॉस 0 का वैल्यू है 1। तो यानी कि जब यहाँ 0 होगा तो वाई एक्सिस में कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ। और आपको पता है cos π/2 का वैल्यू कितना है, cos π/2 का वैल्यू कितना है, जीरो। cos Zero. π/2 का वैल्यू 0 है, 0 है। यस, cos π/2 वैल्यू 0 0। उसका मतलब जब π/2 पे cos आएगा तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। देखो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। फिर से आपका cos 180 डिग्री यानी कि पाई का वैल्यू है -1। देखो यहाँ का y कोऑर्डिनेट कितना गया, -1, यहाँ हो गया +1, ये आ जाएगा फिर से 3π/2, ये आ जाएगा आपका 2π, ये आ जाएगा 5π/2 एंड आगे ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ वैसे ही ये 0 आ गया, ये आ जाएगा -π/2, यहाँ आ जाएगा -π, यहाँ आ जाएगा -3π/2, यहाँ हो जाएगा -2π, वैसे ही आगे चलता रहेगा। तो यानी कि अगर हम कॉसेक्स का डोमेन और रेंज को भी अगर हम जानना चाहते हैं तो कॉसेक्स का जो ये थोड़ा आगे ऊपर उठ गया है उसको काट देंगे आप लोग बनाने के वक्त। ये भी सेम लाइन पे रहेगा, ठीक है, ये पैरेलल लाइन रहेगा, ये पैरेलल नहीं हो रहा है मेरा। अच्छा, यहाँ कहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है +1 से -1 यानी कि इसका भी डोमेन कितना आएगा, -∞ से लेकर +∞ तक। और रेंज कितना आएगा, बोलिए देखकर, -1 to 1। -1 से लेकर 1 तक की -1 रेंज to है। 1। और इसका ग्राफ में क्या हुआ है ना, हम साइन एक्स का जो पिछले वाला ग्राफ था उसको खींच लिए हैं, थोड़ा बाएं तरफ खींच लिए हैं, π/2 का डिस्टेंस पे उसको खींच लिए हैं। देखो साइन एक्स का जो ग्राफ था, मैं यहीं पे ही साइन एक्स का ग्राफ को दूसरे कलर में प्लॉट कर रहा हूँ। आप देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ था वो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा था, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा था। अभी जो cos x का ग्राफ हो गया उसको क्या किए हम, बाएं तरफ थोड़ा खींच लिए हैं। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा था तो वो साइन एक्स का ग्राफ को थोड़ा हम खींच लिए हैं बाएं की तरफ, दिख रहा है ना। बाएं तरफ हम कैसे खींचे, इसको बाएं तरफ खींच के समेट लिए हैं, जो बन गया है वो किसका ग्राफ बना है, y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ बन गया है। ठीक है, cos x का ग्राफ अभी बन जाएगा सबसे। देखो कैसे हम मेमोराइज करेंगे ना, आपको पता है साइन 0 0 है, उसका मतलब साइन का 0 वाला 0 ये ओरिजिन पे पास करेगा। मगर आपको पता है कि cos 0 कितना है, 1 है, उसका मतलब cos जब 0 पे रहेगा तो cos का y कोऑर्डिनेट पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उतना बस याद रख के आप एक ग्राफ को बना सकते हैं। साइन और cos का ग्राफ आ गया, डोमेन और रेंज हमें पता चल गया। अभी हम आ जाएंगे टैन के पास। टैन के पास देखते हैं, टैन का रेंज और डोमेन को देखते हैं। ये आ जाएगा आपका 0, यहाँ ले लेते हैं π/2, यहाँ ले लेते हैं पाई, यहाँ ले लेते हैं 3π/2, यहाँ ले लेते हैं 2π और आगे जाकर चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ के लिए इसके लिए थोड़ा हमें और कुछ करना पड़ेगा, मतलब मैं कुछ लाइंस खींच लूंगा, वो लाइन का क्यों जरूरत है मैं आपको बता दूंगा बाद में। थोड़ा लाइंस में कुछ खींच लेता हूँ, वो लाइंस का मुझे जरूरत है आगे जाकर। दिख रहा है पीली लाइन, पतला सा पीली लाइन दिख रहा है सबको? यस सर। मुझे पतला पतला लाइन ही चाहिए, ये पतला पतला लाइन ही चाहिए। उसका जरूरत भी वैसा ही है कि पतला पतला ही चाहिए मुझे, क्योंकि हाँ। अच्छा, मैं बस इतना ही बना देता हूँ
और मैं आप लोगों को पूछता हूँ अभी कुछ वैल्यूज आपको बताना है मुझे आप बताइए tan 0 का वैल्यू कितना है? tan 0 का वैल्यू कितना है? 0। अभी बताइए tan π/6 का वैल्यू कितना है? 1/√3. tan π/4 का वैल्यू कितना है? 1। 1. tan π/3 का वैल्यू कितना है? 1. √3। tan π/2 का वैल्यू कितना है? 3. tan Not defined. अनडिफाइंड। मगर ये जो अनडिफाइंड है ना, ये देखो 0 से ये थोड़ा बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ये बढ़ते बढ़ते अनडिफाइंड का मतलब ये प्लस इंफिनिटी के आसपास जाकर खत्म हो रहा है, मगर ये प्लस इंफिनिटी पे भी समेट नहीं हो रहा है, ये प्लस इंफिनिटी के आसपास जाकर खत्म हो रहा है। उसका मतलब अगर इसका ग्राफ में बनाऊं, ये 0 से जब ये बढ़ेगा तो 0 से बढ़ेगा अगर, और π/2 के पास जाकर इसका वैल्यू हमें पता नहीं चलेगा कितना हुआ, इसका वैल्यू हमें पता नहीं चलेगा। देखो तो थोड़ा ग्राफ को बना रहा हूं, 0 से ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और π/2 के पास जाकर इसका वैल्यू कितना होगा हमें पता नहीं चलेगा। तो कितना होगा जब पता नहीं है तो हम ऐसा करके छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं पूछता हूँ आपको tan π/2 प्लस π/6 उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -√3. माइनस कॉट π/6 उसका वैल्यू हो जाएगा आपका -√3। अच्छा, अभी बोलूंगा tan π/2 प्लस π/4 उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -1. -1। यानी कि जो ग्राफ आ रहा है ये नेगेटिव से आ रहा है, और आगे जब आप जाते हो, थोड़ा आगे आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हो तो ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव -√3, मतलब ये बड़ा वैल्यू से छोटा, मतलब बड़ा नेगेटिव से छोटा नेगेटिव की तरह आ रहा है। अगर आप tan π/2 प्लस π/3 लिखोगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/√3। 1/√3. और tan π/2 प्लस π/2 ही लिख लोगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू? 0 आ जाएगा। देखो tan पाई का वैल्यू कितना है? tan 180 डिग्री का वैल्यू कितना है? 0 है, तो 0 ही आ जाएगा वैल्यू। उसका मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ है ये बड़ा नेगेटिव से छोटा नेगेटिव की तरह अप्रोच करा है, और ये बड़ा नेगेटिव अनडिफाइंड है। तो यानी कि इसका ग्राफ यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये थोड़ा हाथ मेरा हिल रहा है, तो यहां से होके ऐसे आएगा यहां तक, और आगे जाकर जब पाई प्लस करोगे वो फिर से पॉजिटिव होने लगेगा, और पॉजिटिव हो के 3π/2 के आसपास जाकर फिर से ये अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर से ग्राफ क्या होगा? ऐसे ही यहाँ जाएगा, जाकर ऐसे ही होगा। तो दिस विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ। अभी मुझे बोलो कि यहाँ भी नेगेटिव में भी ऐसा ही होगा, और नेगेटिव में सेम पैटर्न ये चलता रहेगा। ये जो सेम पैटर्न है ना, यही पैटर्न में sin x हमेशा चलता रहेगा। तो अभी मुझे बोलो इसका जो y एक्सिस का वैल्यू है ये कहीं भी हमें मिला है क्या? ये जो फाइनल y एक्सिस का वैल्यू यहाँ मुझे मिला है क्या? नो सर। तो ये y कहाँ तक चल रहा है? हम बोल सकते हैं कि ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ हम नीचे बोलेंगे तो ये कहाँ जा रहा है? ना माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, हाँ कि नहीं? यस सर। अभी आपको बोलूंगा कि ये tan x कहाँ डिफाइंड नहीं है, कौन सा x का वैल्यू है जहां आपका tan x डिफाइंड नहीं हुआ है। तो आप क्या क्या बोलोगे? देखो डिफाइंड का मतलब क्या ना, जहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींच लूं तो वो ग्राफ को टच कर रहा है तो उसको मैं बोलूंगा डिफाइंड है। तो ये π/2 देखो, यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, देखो ये लाइन तो परपेंडिकुलर खींचा गया है, ये लाइन हमारा ग्राफ को मीट कर रहा है क्या? अभी कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। देखो ये ग्राफ को, ये लाइन, ये जो पीली वाला लाइन, ये ब्लू वाला लाइन को मीट नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा π/2 पे, और हमें भी पता है डायरेक्टली कि tan π/2 इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या है? फंक्शन फेल्यूर। अनडिफाइंड का मतलब है फंक्शन फेल्यूर, ठीक है। तो आपका π/2, 3π/2, सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, जितना भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है वहां आपका tan x वाला फंक्शन क्या कर रहा है? फेल कर रहा है, फेल कर रहा है। इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूं? डोमेन tan x का कितना लिख सकता हूं ना, ऑल रियल वैल्यूज माइनस और एक्सेप्ट 2n + 1 × π/2, ऑल
real values except 2n plus 1 into pi by 2 और odd multiples of pi by 2। दुनिया का सारा रियल वैल्यूज तुम कहीं भी हाथ लगा लो, उसके लिए tan x का ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है सिवाय ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। कहीं भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 आपको दिख रहा है तो वहां आपका tan x का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका डोमेन कितना आ गया? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n plus 1 into pi by 2। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, रेंज कितना हो जाएगा? रेंज का मतलब y का मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू। y का मिनिमम वैल्यू कितना है यहाँ? देखिए माइनस इन्फिनिटी हाँ माइनस इन्फिनिटी। y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है यहाँ? प्लस इन्फिनिटी इसका मतलब रेंज कितना आ गया? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये तीनों समझ में आ गए आप लोगों को? यस सर। साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इसको आप याद कर लो। आपका होमवर्क ये है कि आप इन्हीं ग्राफ को आप फिर से समझो, दिमाग से फिर से समझो, फिर से इस ग्राफ को बुक देखो, बुक देख के फिर से प्लॉटिंग करो। वो जो नंबर्स है 0, पाई बाई 2, पाई, 2 पाई बाई 3 पाई बाई 2, ये सारे वैल्यू को नंबर लाइन के ऊपर बनाओ जितना अच्छी तरीके से हो। ये तीनों ग्राफ को बार बार अपने कॉपी में प्रैक्टिस करो। और आपका होमवर्क ये है कि आप कॉपी में इसको बनाइए तीनों ग्राफ को, sin x, cos x, tan x with all the detailed values. You can see any book, you can see anything, you can take reference of anything, but you have to draw it and send to me over my WhatsApp. Okay, so this will be your homework for today, and with this will be the completing the class. And तीनों डोमेन को मैं थोड़ा आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। आपका sin x जो है y equals to sin x, इसका डोमेन कितना है आपको पता चलेगा। डोमेन कितना है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, यानी कि इसको ऑल रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं। रेंज कितना है इसका? रेंज है -1 से लेकर +1 क्लोज ब्रैकेट, यानी कि दोनों को हम मिलाते जा रहे हैं। ठीक है, दोनों को मिला के ले रहे हैं। उसके बाद आ गया y इक्वल्स टू cos x। डोमेन कितना है? सेम आज sin x, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। रेंज कितना आ गया? -1 टू +1। देखो मैं इतना ही लिख सकता था, मगर मैं इतना समझाया, उसका कुछ ना कुछ आगे जाकर अहमियत है। ठीक है, नहीं तो मैं इतना नहीं समझाता। y इक्वल्स टू tan x, बुक में इतना ही लिखा हुआ ऑल है। रियल नंबर्स। नहीं, tan x का क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। सन पाई बाई 2 और रेंज कितना आ गया? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बस यहाँ पे हम खत्म करेंगे। हमारा आज का जो सेशन है इसको यहाँ